Assalamu alaikum. Dear students, welcome to lecture number 24 of Introduction to Management, MJT 101. Let's first see what we have discussed in the last lecture. Remember, in lecture number 23, we discussed topics from chapter number 11, in which we discussed what are the groups, के ग्रुप्स क्या होते हैं और ग्रुप्स को क्यों बनाया जाता है. Remember, we discussed that groups are consisting of two or more individuals which are working together, they are interacting and they are interdependent upon each other, and they are working together for a certain or basic purpose, which may be obviously is achieving of organizational goals. Then we discussed what are the different stages in group development, and the stages we discussed are remember that starts from forming, then we discussed the stage which is storming, after which we discussed norming, performing and adjourning. In the last component of lecture number 23, we discussed the different the process where we talked about the process which tends to not only give us performance but also give us satisfaction, and we discussed this as a group performance satisfaction model. So dear students, now let's see what we are going to discuss in today's lecture. In today's lecture, which is lecture number 24, we will be talking about the remaining components of chapter number 11, which are group decision, conflict management and teams management. So group decisions क्या होते हैं और group decisions और individual decisions में क्या difference होता है, what are the advantages and disadvantages of group decision, ये देखेंगे हम. group management की क्या issues होते हैं, conflicts कैसे आते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स की कैटेगरीज क्या हैं और कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व कैसे किया जाता है, इसको हम डिस्कस करेंगे. और फिर हम लास्ट पार्ट में देखेंगे कि टीम मैनेजमेंट क्या होती है और इससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हमें इम्पोर्टेंट हैं उनको हम देखेंगे. सो रिमेंबर, चैप्टर नंबर 11 वी आर डूइंग राइट नाउ, एंड द चैप्टर नंबर 11 इज मैनेजिंग टीम्स, और आज का पहला टॉपिक है ग्रुप डिसीजन. ग्रुप डिसीजन क्या है? ग्रुप डिसीजन का मतलब है व्हेन मेंबर्स ऑफ द ग्रुप reach to a certain decision and they come up with a certain decision or decide upon something, that is called group decision. यानी वो फैसला जो कि ग्रुप ने किया हो, and obviously the main thing is consensus, कि एक दूसरे के साथ मुतफिका फैसला किया हो, एक ग्रुप का एक रीच्ड डिसीजन हो जिस पे वो पहुंचे हो मिलजुल के सोच विचार के बाद, that is called a group decision. What are the advantages and disadvantages of that? एडवांटेजेस में सबसे पहले है दैट इट जनरेट्स मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, कि जब आप एज अ ग्रुप कोई डिसीजन लेते हो तो फिर आपके पास चूंकि उस ग्रुप में एक से ज़्यादा लोग होते हैं, सो जब सबकी ओपिनियन उसमें शामिल होती है तो जो भी आपने डिसीजन लिया होता है वो कंप्लीट होता है. उसके लिए जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है, जो भी आपको बेसिक चीज़ें प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद आप वहाँ तक पहुँचे होते हैं, these all things are available to you. So all the information and the knowledge which is required to that decision is complete in all sense. यानी कोई चीज़ मिसिंग नहीं होती. आपने किसी प्रोसेस से गुजरने के बाद कई चीज़ों को सामने रख के, कई ओपिनियंस को सामने रख के तो उस डिसीजन पे पहुँचे होते हैं. So most of the things are complete in front of you. It generates more diverse alternatives. देखिए, बिजनेस डिसीजन मेकिंग जो है वो उस वक्त हम कहते हैं जब आपके पास एक से ज़्यादा अल्टरनेटिव अवेलेबल हो,
आप उन अल्टरनेटिव्स को कंपेयर करो, उन पे डिस्कस करो, उनके ऊपर डिलिबरेट करो, डिस्कस करो, और देन यू रीच टू अ सर्टेन डिसीजन एंड यू पिक अप द बेस्ट वन। सो आपके पास डिफरेंट अल्टरनेटिव्स होंगे और उन अल्टरनेटिव्स को डिफाइन किया जाएगा, यानी ग्रुप के मेंबर्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ डिस्कस करेंगे, हर एक अपनी ओपिनियन सामने लेके आएगा, एंड देन एवरीवन विल बी गिविंग एंड आइडेंटिफाइंग डिफरेंट अल्टरनेटिव्स, यानी डिफरेंट ऑप्शंस, डिफरेंट ओपिनियंस, एंड देन at the end of the whole process you will be able to identify the best alternative। आप कहोगे हमने ये सिलेक्ट किया है, ये हमारा डिसीजन है, हमने ये ऑप्शंस को देखा था, ये अल्टरनेटिव्स हमने डिस्कस किए थे और हमने ये जो है बेस्ट ऑप्शन जो है ये सिलेक्ट किया है, हमारे नज़दीक ये जो ऑप्शन है ये बेस्ट है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज इंक्रीज एक्सेप्टेंस ऑफ अ सोल्यूशन। देखें, जब भी ज़्यादा लोग किसी डिसीजन पे बैठ के सोचते हैं और उसमें शामिल होते हैं, उनकी ओपिनियन ली जाती है और फिर कंसेंसस हो जाता है, मुतफ़क्का फ़ैसला हो जाता है, तो फिर उसके सक्सेसफुल होने के इम्प्लीमेंटेशन के दौरान ज़्यादा चांसेस हैं, बिकॉज वी से दैट मोर एंड मोर पीपल आर इन्वॉल्व्ड इन डिसीजन मेकिंग विल शो and will prove that more and more people will be owning that decision। कि जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग किसी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, तो फिर वो सब उसको ओन करेंगे, सब कहेंगे हाँ हमने ये डिसीजन लिया है, हमने ये सोचा था, हमने इससे बातचीत की, मैं खुद उस प्रोसेस में शामिल था, मैंने खुद ये बात की, हमने ये ओपिनियन दी, हमने ये सोचा और मेरे ख्याल में हम लोगों ने जो फैसला किया वो सही है, बिकॉज और अब हमें इस फैसले को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ये हमने मिल के किया था। सो एक्सेप्टेंस ऑफ द सोल्यूशन जो है, एक्सेप्टेंस ऑफ द डिसीजन जो है वो इम्प्रूव हो जाता है, वो बढ़ जाता है जब आप ग्रुप डिसीजन मेकिंग करते हैं, यानी मिलजुल के किसी फैसले पे पहुंचते हैं। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? ऑब्वियसली इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। आपको जब ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व करेंगे डिसीजन में, हर एक की एक अपनी ओपिनियन होगी, हर एक डिफरेंट ओपिनियन देगा, हर एक की बात आप सुनेंगे, उस पर सोचेंगे सारे मिलके, तो फिर ऑब्वियसली डिसीजन मेकिंग में टाइम लगेगा। ये एक डिसएडवांटेज तो है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी ऑफ द आउटपुट और द क्वालिटी डिसीजन यू विल बी रीचिंग, दैट इज ग्रुप डिसीजन इज अ बेस्ट वन। मतलब क्वालिटी में अगर बात करें तो जो डिसीजन आपको एज अ रिजल्ट मिलेगा वो बहुत अच्छा होगा, बिकॉज सब ने उस पर सोच विचार किया, आपने डिफरेंट अल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई किया, उनको डिस्कस किया, डिफरेंट पॉसिबल सॉल्यूशंस को आइडेंटिफाई किया, उन पर डिस्कशन हुई आपकी, और फिर आपने एक डिसीजन पे रीच किया through consensus। So now you can say that because it's a decision well thought out, आपने इसको बहुत deliberate किया है, discuss किया है, so although maybe it's maybe obviously be taking more time, but the quality of the decision will be excellent। But sometimes there is a disadvantage that minority domination may take place। यानी हो सकता है कि आपने जो decision लिया है वो किसी minority group को ज़्यादा फैसिलिटेट कर जाए, डोमिनेट कर दे, या उस पर इफेक्ट कर दे, दोनों चीज़ें हैं। या माइनॉरिटी जो है उस वो डोमिनेट कर दे उस डिसीजन में, यानी उसने जो माइनॉरिटी ग्रुप जो है वो उसने जो ओपिनियन दी है वो वैलिड कंसिडर कर ली जाए, तो मेजॉरिटी जो है वो कहे कि भाई इन चंद लोगों की बात जो है या इन चंद लोगों का जो ओपिनियन है वो ही फाइनल हो गया है, तो मे नॉट बी ट्रू, मे नॉट बी वैलिड। सो कई दफ़ा ग्रुप्स के अंदर अगर कोई इशू आ जाए जहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आ जाती है, जैसे एक डिसीजन ऐसा है जो ज़्यादातर लोगों को तो अच्छा लगा, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनको जो माइनॉरिटी से बिलोंग करते थे या डिफरेंट जेंडर से बिलोंग करते थे, यानी मेल फीमेल में अगर हम देखें तो कोई ऐसा डिसीजन है जो मेल्स के लिए ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है, फीमेल्स के लिए कोई इतना सपोर्टिव नहीं है, तो दे में थिंक कि हमारे लिए जो ये नेगेटिव है। सो ग्रुप डिसीजंस में कभी कभार ऐसा हो जाता है कि जो आपने डिसीजन लिया है वो
अक्सर लोगों के तो हक में हो, लेकिन कुछ लोगों के वो हक में ना हो, या ऐसा भी हो सकता है कि जो कम तादाद में लोग हैं उनके फेवर में वो डिसीजन चला जाए, लेकिन जो मेजॉरिटी वाले हैं उनके हक में ना जाए। प्रेशर्स टू कन्फॉर्म, डिसएडवांटेज कह सकते हैं कि आपको कई दफ़ा जो फैसला हुआ होता है, वट एवर द डिसीजन यू हैव रीच टू, दैट नीड्स टू बी कन्फर्म्ड, यानी उसको आपको पूरा करना ज़रूरी है। यानी वो जब जैसा भी डिसीजन हो गया है, वेदर यू लाइक्ड इट और नॉट, वेदर यू वर in 100% in favor of that or not, but now because it's a group decision you have to obey it, you have to abide by it. So आपको अब उसको पूरा करना है, उसको मानना है, उसको ऑब्जर्व करना है, उसको कंफर्म करना है। At the same time it may result in ambiguous responsibility. Ambiguous responsibility means over here कि आपको कई दफ़ा कोई ऐसा काम करने के लिए कह दिया जाता है which you are not sure about, या which is not very clear to you, or maybe it's a kind of vague or ambiguous. So decisions जो होते हैं when they are reached to, they must be clarified further, they must be clear, crisp, to the point, they must be well deliberated. और अगर आप उस पर डिस्कशन नहीं करोगे, हर एक के पॉइंट ऑफ व्यूज़ को कंसिडर नहीं करोगे, हर एक के क्वेश्चंस को आंसर नहीं करोगे, हर एक के क्वेरीज को आंसर नहीं करोगे, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई नहीं करोगे, और जो आपने अल्टरनेटिव सेलेक्ट किया है उसको जस्टिफाई नहीं करोगे, तो फिर ऐसा हो सकता है कि देयर मे बी अ सर्टेन सिचुएशन वेयर सम पीपल टेंड टू फील they have been neglected, or maybe their responsibilities are not clear, kind of ambiguous situation is there. So कभी कभार ग्रुप डिसीजन का ये डिसएडवांटेज हो जाता है। Now in this slide we are now going to discuss that what are the different techniques for making more creative group decisions, कि हम जो ग्रुप डिसीजनिंग कर रहे हैं उसमें हम इम्प्रूवमेंट और कैसे ला सकते हैं, क्रिएटिवनेस कैसे ला सकते हैं, यानी उसमें हम बेहतरी ला रहे हैं तो उसमें क्या क्रिएटिव काम हम कर सकते हैं जिससे बेहतरी आए, यानी कोई ऐसी टेक्निक्स, कोई ऐसे मैकेनिज़म्स जिससे ग्रुप डिसीजनिंग का जो प्रोसेस है वो बेहतर हो जाए। पहला मेथड इसमें है इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग्स। इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग्स क्या है? डिसीजन मेकिंग ग्रुप्स दैट इंटरैक्ट बाय यूजिंग लिंक्ड कंप्यूटर्स। आजकल नेटवर्क्स का ज़माना है, कम्युनिकेशन का ज़माना है, ऑनलाइन कम्युनिकेशन का है। सो वी नाउ हैव डिफरेंट सोशल नेटवर्किंग साइट्स, फेसबुक, ट्विटर, इस तरह की हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ पे आप एक पेज क्रिएट कर देते हो, लोग आते हैं अपनी ओपिनियन देते हैं, आप कोई ब्लॉग क्रिएट कर देते हो, कोई ऐसा वेब पेज या ऐसा डिस्कशन फोरम ऑनलाइन बना देते हैं, वेबसाइट बना देते हैं जहाँ पे लोग जाके अपनी ओपिनियन देते हैं, पोल्स हो सकते हैं। द सेम कैन बी डन इन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। ऑर्गेनाइजेशन के इनसाइड भी आप डिफरेंट इश्यूज़ के ऊपर, और यू कैन गो ऑन चैट, ऑनलाइन चैट हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर्स के दौरान, ऑनलाइन आप एक दूसरे के साथ इश्यूज़ पे डिस्कस कर रहे हो, डिफरेंट लोग अपनी ओपिनियन दे रहे हैं, इंटरनल आपका एक ब्लॉग है, पेज है, वेबसाइट है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रही है या एक्सटर्नल भी है। सो यू आर गेटिंग डाइवर्स ओपिनियंस। और बेसिक एसेंस हमेशा याद रखना है आपने कि डिसीजन मेकिंग में जब भी आपके पास वैरायटी ऑफ ओपिनियंस होंगी और आप ओपिनियंस को वैलिड समझें और उन समझते हुए उनको डिस्कस करें, डिलिबरेट करें, क्वेश्चन करें, इंट्रीगिंग काइंड ऑफ एनवायरनमेंट हो, क्वेश्चनिंग एनवायरनमेंट हो, आप एक दूसरे के साथ डिस्कस करें पॉजिटिवली, इसमें कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है, पॉजिटिवली इश्यूज़ को आइडेंटिफाई करते हुए उनको डिस्कस करें, तो देन यू विल बी एबल टू गेट मोर पॉजिटिव रिजल्ट। सो ऑनलाइन मीटिंग्स जो है, इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग्स जो है, ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें आप डिफरेंट पर्सनल जो ऑर्गेनाइजेशन के हैं विद सिटिंग ऑन देयर कंप्यूटर्स, दे कैन कम्युनिकेट, they can chat with each other, they can send each other messages, you can post a message, you can post a blog, और ऑनलाइन कम्युनिटी बना सकते हो आप जिसमें लोग एक दूसरे को जाके मैसेजिंग करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं, डिस्कस करते हैं, फोरम्स बनाते हैं, और यू कैन डू एनीथिंग। सो दैट दे बेसिकली वन ऑफ द मैकेनिज्म to improve decision making is through electronic meetings.
The next mechanism being discussed over here is called nominal group technique, also known as or abbreviated as NGT. Nominal group technique क्या है? It's been discussed over here. Initially, the idea is कि the group members are allowed to write down their point of views on a certain issue. कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, उसमें जितने भी ग्रुप मेंबर्स हैं उनको अपने इश्यूज एक पीस ऑफ पेपर के ऊपर लिखने दिया जाता है. And then each one by one comes onto the rostrum or the platform or dais or in front of the group, आता है, present करता है अपना point of view और बैठ जाता है वापस आके अपनी जगह पे. Then the next one comes in और ये चलता रहता है. But during the whole process कोई criticize नहीं करता, कोई discuss नहीं करता, कुछ नहीं हो रहा, कोई question raise नहीं हो रहा. Once the whole process is complete, जब हर एक ने अपना opinion convey कर लिया, then the forum is open for discussion. फिर forum को open कर दिया जाता है, हर एक अपना point of view को या दूसरे के point of view को discuss करता है और हर चीज़, हर जो point of view present किया गया है उसको criticize भी किया जाता है, उसकी अच्छी negative things, positive things, सब issues को discuss किया जाता है, and then they finally reach to a certain agreement. So let's just see over the slide. It says it's a group decision making technique in which group members are presented with a problem, यानी जिसमें group members को पहले एक problem present किया जाता है. Each member independently writes down his or her ideas on the problem. हर एक अपना जो ideas हैं उनको लिखता है, and then each member presents one idea to the group until all ideas have been presented. हर एक अपना आइडिया जो है, कोई एक आइडिया हर एक जो है वो अपना प्रेजेंट करता है और ये चलता रहता है when till the time all the ideas have been presented, and finally no discussion takes place until these ideas have been presented for, and once that is done, then the forum is discussed. All ideas are then discussed, and then they reach to a certain decision or through consensus. The third method being discussed on the slide is called brainstorming. Brainstorming का मतलब है कोई इशू आपके सामने रख दिया जाता है और आपको कहा जाता है कि इस पे सोच विचार करो, इसके ऊपर you need to think over it. That is use your brain power maybe. So you storm, you think, you go through the different level of you may be thinking very hard, and then maybe आप कुछ देर के लिए बाहर जाते हो, वॉक करते हो, फिर सोचते हो, काम करते हो अपने ऑफिस में. So basic idea is that you keep on thinking, and for that obviously that will be done in a group. So जितने ग्रुप के मेंबर हैं वो मिलजुल के भी उस पर बातचीत करते हैं, डिस्कस करते हैं, deliberate करते हैं, and then when they are working and thinking hard, sitting together, सर जोड़ के बैठ जाना and उसके ऊपर सोच विचार करना, that is called brainstorming. An idea generating process that encourage alternatives while withholding criticism. यानी हम क्या लॉ कर रहे हैं, हम कह रहे हैं हर एक अपनी ओपिनियन दे, बट हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि एक दूसरे को क्रिटिसाइज ना किया जाए, बल्कि जितने भी आइडियाज़ हैं, जितने भी अल्टरनेटिव्स हैं, हर एक अपना बताए, एक दूसरे को उस पर डिस्कस करे, पर क्रिटिसिज्म ना करे, पॉजिटिव चीज़ें अभी बताए. क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म इज़ नॉट अ गुड थिंग. तो आइडियाज़, अल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई किया जाए. दे विल बी सिटिंग टुगेदर, थिंकिंग ओवर इट, डिलिबरेटिंग इट, and then they were trying to find out the solution to a certain problem. Now next comes conflict. You see, as discussed in the last lecture briefly, I told you that conflict is considered to be a good thing rather than a bad thing. Traditionally ये समझा जाता था कि conflict का मतलब है कि कोई चीज़ अच्छी नहीं हो रही, यानी अगर आप के ग्रुप के मेंबर्स एक दूसरे के साथ किसी इशू पे, किसी पॉइंट ऑफ व्यू पे डिफरेंट ओपिनियन है उनका, एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उनका, तो आप कहो कि जी एवरीथिंग इज़ गोइंग बैड. बट रिमेंबर, हमने जब स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट पढ़ा लास्ट लेक्चर में, तो हमने कहा कि अच्छी बात यह होती है कि जितनी जल्दी किसी ग्रुप के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स सरफेस आउट हो जाएं, उन पे डिस्कशन हो जाए, उनको निगोशिएट कर लिया जाए, तो उतनी ही जल्दी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन में उस ग्रुप के अंदर नॉर्मलाइज हो जाएंगी, परफॉर्मेंस शुरू हो जाएगी और
टास्क या असाइनमेंट अचीव हो जाएगी और ग्रुप एडजॉइन हो जाएगा. So that is why we say that conflicts are good. They are not bad, because अगर उसको पॉजिटिवली देखा जाए, अगर इश्यूज पे आप डिलिबरेट नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ कोई पॉइंट रेस नहीं करेंगे, कोई उस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कि ये चीज़ में गलत हो सकती है या ये आगे चल के प्रॉब्लम हो सकता है, तो फिर कभी भी आप अच्छा डिसीजन नहीं कर पाएंगे. सो दैट इज़ वाई वी से कॉन्फ्लिक्ट्स आर ऑलवेज देयर, दे आर ऑलवेज पॉसिबल. ऐसा होना हमेशा पॉसिबल होता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट्स को फिर आपको मैनेज भी करना है. यू नीड टू मैनेज दोज कॉन्फ्लिक्ट्स. और मैनेजमेंट से मुराद यहाँ पे क्या है वो अभी हम देखेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे हैंडल किया जाना चाहिए. बट बिफोर दैट लेट्स सी व्हाट इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑल अबाउट. कॉन्फ्लिक्ट क्या है? द परसीव्ड इनकम्पैटिबल डिफरेंसेस इन अ ग्रुप. परसीव्ड का मतलब है जो जहनों में है, यानी जो आप समझते हैं कि डिफरेंस हो सकता है. मेरे जहन में लेट्स से किसी इशू के मतलब कोई डिफरेंट ओपिनियन है, बाकी लोग कुछ और कह रहे हैं, मेरे जहन में ये आ रहा है कि नहीं ये हो सकता है आगे चल के ये प्रॉब्लम हमें हो जाए, ये बाकी लोग तो कह रहे हैं लेकिन मेरा जहन नहीं मान रहा. सो व्हेन यू से दैट इज बेसिकली अ सिचुएशन वेयर देयर इज अ परसीव्ड इनकम्पैटिबिलिटी in your mind and is being resulting from interference with or opposition to its assigned task. In some form of interference create कर रहा है against your task which has been assigned to you. So what is conflict? Conflict का मतलब है कि when there is a incompatibility or difference of opinion in your mind and that is hindering, that is disturbing the overall performance of the task which you are doing, that is called a conflict. ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट भी होता है. ग्रुप में कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि कोई एक इंडिविजुअल जो है, जैसे मैं या कोई भी जो इस ग्रुप में काम कर रहा है, हम लोग ये सोचना शुरू करें या हमें ये सोच आए कि ये जो चीज़ है, ये जो क्वेश्चन रेज हुआ है या ये जो प्रॉब्लम है, ये इसका ये सलूशन जो बाकी लोग कह रहे हैं या सोच रहे हैं ये ऐसा नहीं है. सो अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा, अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो फिर जो प्रोसेस है परफॉर्मिंग का, ग्रुप के काम करने का, किसी चीज़ को अचीव करने का, उसमें डिस्टर्बेंस आती है, उसमें हिंड्रेंस क्रिएट होती है, उसमें डिलेज आते हैं. तो दैट इज़ व्हाट इट सेज, द परसीव्ड इनकम्पैटिबल डिफरेंसेस इन अ ग्रुप resulting in some form of interference with or opposition to its assigned tasks. यानी किसी न किसी किस्म का डिले आ जाए, इंटरफेरेंस आ जाए, ओपोजिशन आ जाए, किसके अगेंस्ट? वो जो काम वो ग्रुप कर रहा है. और वो किस वजह से होता है? जब सबकी जो सोच है वो एक जैसी ना हो, कुछ और सोच रहे हो और कुछ और सोच रहे हो, तो फिर इनकम्पैटिबल डिफरेंसेस आ जाते हैं परसीव्ड परसेप्शन में. तो उसकी वजह से फिर सारे मिलजुल के देखें, अगर सारे एक ही सोच के होंगे तो फिर काम बेहतर तरीके से होगा. लेकिन अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, सोच में फ़र्क है, तो फिर जो काम आप करना चाह रहे हैं वो डिले हो जाएगा, उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई इशू आ जाएगा. अब कॉन्फ्लिक्ट के डिफरेंट व्यूज़ क्या हैं? मैंने जैसे शुरू में कहा दैट ट्रेडिशनली इट्स बीन कंसिडर्ड दैट कॉन्फ्लिक्ट इज़ नॉट अ गुड थिंग, इट्स गोइंग टू हिंडर द ओवरऑल प्रोसेस. सो हिंड्रेंस तो है, ये मैं नहीं कह रहा कि हिंड्रेंस या डिस्टर्बेंस या अपोजिशन नहीं होगी, डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट होगी, लेकिन ट्रेडिशनली इसको अच्छा नहीं समझा गया और ये कहा गया कि इट मस्ट बी अवॉइडेड. यानी कॉन्फ्लिक्ट जब हो तो उसको अवॉइड करना चाहिए, इससे बचना चाहिए. ऐसा कोई भी ऐसा स्टेप ले लो कि ऐसा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो ही ना. सो कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड नहीं करना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट को फेस करना चाहिए, मैनेज करना चाहिए. ये फ़र्क है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की डेफिनेशन में और बाकी चीज़ में. कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट सेज दैट यू नीड टू फेस दैट कॉन्फ्लिक्ट, यू नीड टू मैनेज इट. मैनेजमेंट क्या है फिर हम अभी आगे देखेंगे कि उसमें आपको डिस्कस करना चाहिए, स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करना चाहिए, डिलिबरेट करना चाहिए इश्यूज़ को के ऊपर. एंड देन जब चीज़ें सॉल्व होंगी, निगोशिएट होंगी, तो फिर आपके पास हर एक के लिए विन विन सिचुएशन होगा. हर एक कहेगा कि मेरी भी ऑप्शन ठीक थी, अच्छा डिसीजन हमने मिलजुल के कर लिया, सो इट्स गुड.
बट अगर आप विन लूज पे चले जाएं कि मैं जीत जाऊं बाकी हार जाएं, मेरी बात मानी जाए बाकी जो है उनकी बात ना मानी जाए, तो इट्स नॉट अ गुड सोल्यूशन देन। सो कहने का मकसद यहाँ पे ये है कि ट्रेडिशनल व्यू था कि कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करना चाहिए। फिर एक व्यू आया विच इज़ नाउ कॉल्ड ह्यूमन रिलेशंस व्यू। ह्यूमन रिलेशंस व्यू ने ये कहा कि इट्स ऑब्वियस कि व्हेन यू पुट सम पीपल वर्किंग टुगेदर इन अ ग्रुप दे विल हैव सम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ वन वे और अनदर। सो जब भी आप लोगों को इकट्ठा करते हैं, लोग इकट्ठे काम करते हैं, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट नॉर्मल चीज़ है, ऐसा होता ही है। सो इट्स नॉट समथिंग एबनॉर्मल। कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड नहीं करना चाहिए, कोई एबनॉर्मैलिटी नहीं है, ये नॉर्मल चीज़ है। कॉन्फ्लिक्ट इज़ अ नेचुरल एंड इनएविटेबल आउटकम इन एनी ग्रुप, यानी ये नेचुरल चीज़ है, ये कॉमन चीज़ है, इट्स ए नॉर्मैलिटी, और इसको इट्स नॉट एन abnormality के कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। वेन एवर यू पुट सम वर्कर्स और लेबर और मैनेजमेंट टुगेदर दे आर गोइंग टू बी वर्किंग टुगेदर, और जब आप एक दूसरे के साथ काम करते हैं तो फिर किसी न किसी किस्म का आपका और उनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। इंटरेक्शनिस्ट व्यू says that conflict can be a positive force and is absolutely necessary for effective group performance। जैसे कि हमने वो stages of group development में देखा, इंटरेक्शनिस्ट व्यू क्या है कि ये इंटरेक्शन की वजह से होगा, कॉन्फ्लिक्ट इंटरेक्शन की वजह से होगा। और क्योंकि जब आप एक दूसरे के करीब आते हैं, डिस्कस करते हैं, काम करते हैं, तो फिर इंटरेक्शन होगा, और इंटरेक्शन के दौरान कोई ना कोई चीज़ें पॉपअप होंगी, सरफेस आउट होंगी, और ये इंटरेक्शन से ही सॉल्व होता है जब आप उसको डिस्कस करेंगे, डिलिबरेट करेंगे, और ये इट्स अ पॉजिटिव थिंग, ये एक अच्छी चीज़ है। क्यों? क्योंकि फिर आपकी परफॉर्मेंस जो है ग्रुप की वो इम्प्रूव करेगी। सो द इंटरेक्शनिस्ट व्यू सेज कॉन्फ्लिक्ट कैन बी अ पॉजिटिव फोर्स एंड इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी, इट्स वेरी नेसेसरी फॉर इफेक्टिव ग्रुप परफॉर्मेंस। और अगर आप चाहते हैं, बिकॉज रिमेंबर, बार बार मैं उसी तरफ रेफर करता हूं कि द अर्लियर द कॉन्फ्लिक्ट सरफेस आउट, द अर्लियर यू सॉल्व इट, द अर्लियर यू विल स्टार्ट परफॉर्मिंग एज अ ग्रुप। तो जितनी जल्दी ये कॉन्फ्लिक्ट्स आपको नज़र आ जाएं, आप उसको डिस्कस कर लें, सॉर्ट आउट कर लें, उतनी ही जल्दी चीज़ें नॉर्मलाइज होंगी, उतनी ही जल्दी ग्रुप परफॉर्म करना शुरू कर देगा, और उतनी ही जल्दी आपके टास्क अचीव हो जाएंगे। अब आगे आ जाता है कैटेगरीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। वी हैव टू कैटेगरीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स being discussed over here on the slide. The first one is functional, the other one is dysfunctional. Functional conflicts are short term and they are a mechanism for improvement in the overall performance of the group. Structure से related या objective से related कोई ऐसा conflict जो कि short term हो और जिसको solve करने से आपकी improvement आ जाए performance में, that is called a functional conflict। यानी function से related, objective से related, यानी जो काम ग्रुप कर रहा है उससे रिलेटेड कोई आपका कोई प्रॉब्लम हो, उसको आप सॉल्व कर लें, दैट इज कॉल्ड अ फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट। डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट क्या है? ऑन द अदर हैंड इज समथिंग विच इज नॉट कंस्ट्रक्टिव, रादर डिस्ट्रक्टिव है, एंड दैट इज नथिंग टू डू इनिशियली विद द काइंड ऑफ वर्क विच यू आर ट्राइंग टू डू। ऑब्जेक्टिव्स के लिए के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं होती, उस काम से रिलेटेड नहीं होती। मे बी आप स्ट्रक्चर से खुश नहीं हैं, आप रिसोर्सेज की एलोकेशन से खुश नहीं हैं, आप अपने स्टेटस या रोल से खुश नहीं हैं, दैट मे बी समथिंग विच इज़ क्रिएटिंग अ हिंड्रेंस। सो आपको जिस ग्रुप में लाया गया है आप उसके बाकी मेंबर से खुश नहीं हैं, या आप स्ट्रक्चर से खुश नहीं हैं, या आप ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज से खुश नहीं हैं। सो दोज थिंग्स विच आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड with the work which that group is supposed to do, या उस काम के से रिलेटेड ना हो जिसके लिए ये ग्रुप बनाया गया है, तो वो तमाम चीज़ें जो अदर देन दिस थिंग है, दे आर कॉल्ड डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट्स। और फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट वो हैं जो उस ग्रुप के फंक्शन से, उसके काम से रिलेटेड हो। और हमेशा याद रखें, फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं शॉर्ट टर्म होते हैं और कंस्ट्रक्टिव होते हैं। डिसफंक्शनल जो होते हैं दे आर लॉन्ग टर्म एंड दे आर डिस्ट्रक्टिव इन नेचर, कि अगर आप उस चीज़ पर को परसिस्ट करते रहेंगे तो ग्रुप की या ओवरऑल परफॉर्मेंस इंप्रूव होने के बजाय लो चलती जाएगी और रहेगी। अब
let's discuss what are the different types of conflict. Types of conflict में the first one is called a task conflict. यानी there is a conflict, there is a difference of opinion, there is a disagreement on the task which is supposed to be completed by the group. So अगर ग्रुप के मेंबर्स में जो टास्क है उसके कंप्लीशन पे कोई इशू है, या जो टास्क आपको एक इंडिविजुअल मेंबर को दी गई है ऑन द ग्रुप ऑफ द ग्रुप, उसको किसी बात पे उस टास्क पे एतराज़ है, तो अगर टास्क रिलेटेड कोई कॉन्फ्लिक्ट है ग्रुप लेवल पे या इंडिविजुअल लेवल पे इन द ग्रुप, तो दैट इज कॉल्ड अ टास्क कॉन्फ्लिक्ट. सो इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट रिगार्डिंग द कंटेंट एंड गोल्स ऑफ द वर्क टू बी डन, दैट इज कॉल्ड द टास्क कॉन्फ्लिक्ट. देन वी हैव रिलेशन कॉन्फ्लिक्ट. रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट क्या है? इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट है. यानी हम लोग एक टीम में काम कर रहे हैं, सो मुझे दूसरे के बातचीत के स्टाइल पे एतराज़ है, या उसकी बात करने या उसके साथ जो उसके हमारा आपस में किसी बात पे कोई एतराज़ है, झगड़ा है, तो हमारे इंटरपर्सनल यानी पर्सनल लेवल पे एक दूसरे के साथ हमारा कोई कॉन्फ्लिक्ट है. काम से मुतल्लिक कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, हमें ग्रुप के काम पे कोई इशू नहीं है, हमें जो टास्क दी गई है उस पर कोई इशू नहीं है, लेकिन हम ग्रुप मेंबर्स में आपस में कोई एक इख्तलाफ है एक दूसरे के साथ पर्सनल लेवल पे, दैट इज कॉल्ड द रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट. द नेक्स्ट थिंग इज कॉल्ड द प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट, कि जिसमें जो काम हम करना चाह रहे हैं ग्रुप को के अंदर उस पर तो कोई एतराज़ नहीं है, ना हमें पर्सनल लेवल पे एक दूसरे के साथ कोई इख्तलाफ है, बट जिस मैकेनिज्म को, जिस प्रोसेस को, जिन स्टेजेस को हम कंप्लीट करके ये काम मुकम्मल करेंगे, उस प्रोसेस के ऊपर कोई इख्तलाफ है कि जी पहले ये काम करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये होगा तो ये होगा. इस पूरे प्रोसेस के ऊपर हमें कोई एतराज़ है या मेंबर्स को कोई एतराज़ है, सो दैट इज कॉल्ड द प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट. सो हाउ द वर्क गेट्स डन or how the work will be done, that and what process will be followed, if that is the basic reason for problem or conflict, तो फिर हम कहते हैं the type of conflict is called process conflict. So हमने 3 types of conflict देखे: task conflict, relationship conflict, and the third one is the process conflict. अब आपके सामने जो स्लाइड आ रही है, दैट इज शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्फ्लिक्ट एंड ग्रुप परफॉर्मेंस, के कॉन्फ्लिक्ट में और ग्रुप की परफॉर्मेंस में क्या रिलेशनशिप है. ऑन वाई एक्सिस, इफ यू कैन सी ऑन द स्लाइड, ऑन द वाई एक्सिस वी हैव टेकन द लेवल ऑफ ग्रुप परफॉर्मेंस, हाई है और लो है, यानी ग्रुप की परफॉर्मेंस हाई होगी और लो होगी. इसी तरीके से अलोंग द एक्स एक्सिस वी हैव टेकन द लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, के लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट लो है या हाई है. अब वी हैव 3 स्टेजेस बीइंग मार्क्ड ओवर हियर एज ए, बी एंड सी. ए क्या है? ए इज अ लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जहां पे आप देख सकते हो कि कर्व ये शो कर रहा है कि आपका जो परफॉर्मेंस है वो लो है. जब ग्रुप का परफॉर्मेंस लो हो और आपका लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट भी लो है, यानी कॉन्फ्लिक्ट भी लो है और आपका जो ग्रुप की परफॉर्मेंस है वो भी लो है, तो इसका मतलब है वी आर इन जोन ए एंड जोन सी. आप देख सकते हो दोनों में क्या है कि आपका ग्रुप परफॉर्मेंस जो है वो लो साइड पे है, ए में भी लो है और सी में भी लो है. तो ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जहां पे आपकी परफॉर्मेंस लो हो और आपका कॉन्फ्लिक्ट या तो वेरी लो है या वेरी हाई है, कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है या कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं, तो फिर उस केस के अंदर हम कहते हैं दैट इज़ अ डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट. सो यू कैन सी दैट इट सेज दैट इन कैटेगरी ए और कैटेगरी सी, जहाँ पे हमारी परफॉर्मेंस दोनों केसेस में लो है ग्रुप की, लेकिन या तो कॉन्फ्लिक्ट लो है या हाई है, मिड में नहीं है, तो दैट इज़ कॉल्ड अ डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट. और जब हमने बी की बात की तो बी एक ऐसा लेवल है जहाँ पे हमारा लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो है वो सेंटर में है, मीडियम में है, एंड द काइंड ऑफ ग्रुप परफॉर्मेंस जो है
that is on the higher side. So now we can say with surety, we're looking at this graph, that whenever the group has a kind of conflict which is functional in nature, which is moderate, meaning not very low, not very high, it's a moderate kind of conflict, and the conflict, whenever that will happen, and it's basically a functional conflict which is regarding the task or the work being done, so then क्या होगा, जो ग्रुप का परफॉर्मेंस है वो हाई साइड पे जाएगी. सो ये कर्व जो है ये हाई है इस साइड पे जब आपकी ग्रुप की परफॉर्मेंस हाई है, और लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो है वो मीडियम है. सो वी नाउ से दैट ऑप्टिमल कॉन्फ्लिक्ट हो, हाई परफॉर्मेंस होगी आपकी, और उस केस में नाउ वी कैन से दैट ग्रुप्स इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि अनरिस्पॉन्सिव टू चेंज है कैटेगरी ए के अंदर, कैटेगरी बी में इनोवेटिव हैं, डिस्कस कर रहे हैं, सेल्फ क्रिटिकल हैं, और ग्रुप सी के अंदर दे आर डिसरप्टिव, क्योटिक, एक क्योस का सिचुएशन है ना, ग्रुप परफॉर्मेंस आपकी अच्छी है, इट्स लो, और कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत ज़्यादा हाई हो गया है. सो नाउ वी कैन नाउ से विद श्योरिटी दैट दिस डायग्राम सेज दैट द कॉन्फ्लिक्ट शुड बी ऑप्टिमल, ना लो होना चाहिए ना हाई होना चाहिए. इंटरेक्शन की वजह से कॉन्फ्लिक्ट होते रहेंगे और सॉल्व भी होते रहेंगे. पॉजिटिवली आप उसको टैकल करो, जब भी कॉन्फ्लिक्ट हो उसको डिस्कस करो, let them discuss, all the members should discuss it, and whenever they will discuss they will reach to an agreement. so optimal रहेगा, ना conflict बहुत ज़्यादा बढ़ेगा. चीज़ों को अगर आप डिस्कस नहीं करोगे तो कॉन्फ्लिक्ट हाई साइड पे चला जाएगा, और अगर आप कॉन्फ्लिक्ट को आइडेंटिफाई नहीं करोगे, इंपॉर्टेंस ही नहीं दोगे, तो कॉन्फ्लिक्ट होगा तो सही लेकिन लो साइड पे इनिशियली आपको नज़र आता रहेगा. यानी अगर बिल्कुल इंटरेक्शन नहीं है तो फिर कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं होगा. जब भी इंटरेक्ट करेंगे लोग, जब भी वो एक ग्रुप में काम करेंगे, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, इंटरडिपेंडेंट होंगे, तो कॉन्फ्लिक्ट ज़रूर आएगा. और जब भी कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो फिर यू नीड टू मैनेज इट, यू नीड टू कीप इट टू एन ऑप्टिमल लेवल. ऑप्टिमल लेवल का मतलब फंक्शनल काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रखना अच्छी बात है, यानी वर्क के ऊपर डिस्कशन हो, वर्क से रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट्स हो, उनको आप सेटल करते जाओ, उसको डिस्कस करते जाओ, सॉल्व करते जाओ, आपकी परफॉर्मेंस हाई साइड पे रहेगी. लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, यानी उसको कभी डिस्कस ही ना किया जाए, और वो डिसफंक्शनल टाइप कॉन्फ्लिक्ट हो, या कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा लो है, अगेन वो डिसफंक्शनल काइंड ऑफ थिंग है, तो दोनों केसेस में जब भी आप कैटेगरी ए और सी को यहाँ देख रहे हैं तो आपकी परफॉर्मेंस लो साइड पे रहेगी, आपकी परफॉर्मेंस कभी भी इम्प्रूव नहीं होगी. अब very important component of this chapter or this lecture today is techniques to manage conflict, कि हमें conflict को कैसे manage करना है. अब whenever we talk about managing the conflict, तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है that it depends upon various steps, it includes various things और various types. So conflict को approach करने का और उसको manage करने के कोई 5 styles यहाँ पे आपके सामने present किए गए हैं. ये 5 styles कौन से हैं? We have avoidance, conflict avoidance, accommodation also known as conflict accommodation, forcing, compromise and collaboration. I repeat, these are avoidance, accommodation, forcing, compromising and collaboration. अब हम एक स्लाइड के थ्रू, एक फिगर के थ्रू इन चीज़ों को देखेंगे, और हम ये देखेंगे कि हम ये 5 जो हैं ये किस तरह अरेंज्ड हैं. और यू कैन सी ऑन द योर स्लाइड नाउ के एक्स एक्सिस पे हमने लिया है कोऑपरेटिवनेस, और 2 इसकी एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, अनकोऑपरेटिव और कोऑपरेटिव. कि क्या आप कोऑपरेट कर रहे हैं या आप कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, आप उस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए एक दूसरे के साथ मिलजुल के बातचीत कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे. सो इफ अ मैनेजर, आई एम टॉकिंग अबाउट मैनेजमेंट राइट नाउ, सो मैनेजर जो है वो कोऑपरेटिव भी हो सकता है और अनकोऑपरेटिव भी हो सकता है एज फार एज मैनेजिंग दैट कॉन्फ्लिक्ट इज कंसर्न्ड. यानी वो उसको आगे बढ़ के उस मैनेज करना चाहता है, उसको कोऑपरेट करता है लोगों के साथ, उस प्रॉब्लम को हल करने की कोशिश करता है या नहीं करता है. असर्टिवनेस बीइंग टेकन अलोंग द वाई एक्सिस, और असर्टिवनेस का है अनअसर्टिव या असर्टिव. असर्टिवनेस का मतलब ये है कि हाउ
ready, you are to take up that challenge. कोऑपरेट करना एक अलग चीज़ है, कोऑपरेटिव अनकोऑपरेटिव होना एक अलग चीज़ है। असर्टिवनेस का मतलब है कि हाउ इंटरनली यू आर मोटिवेटेड टू सॉल्व इट। यानी असर्टिवनेस क्या है, आप में वो पॉजिटिविटी है कि नहीं है, आप में वो लगन है, आप में वो कोशिश करने चाह रहे हैं आप उस मसले को हल करने की कि नहीं चाह रहे हैं। सो वी कैन हैव एन असर्टिवनेस एंड वी कैन हैव अनअसर्टिवनेस। And now let's see what are the 5 things over here. The first one is called avoiding. Avoiding is when the manager is uncooperative and unassertive. यानी ना ही वो cooperate कर रहा है उसको, ना ही उसकी कोई इसमें कोई intention है कि वो इसको हल करे। So it happens when resolving conflicts by withdrawing from or suppressing them. यानी आप avoid कर जाएं ना, आप कहते हैं यार मेरा कोई इसमें कोई नहीं इंटरेस्ट कि मैं इस मसले को हल करूं, आई एम ट्राइंग टू अवॉइड इट, इसको परे हटाओ, कुछ और डिस्कस करो। सो अवॉइडिंग क्या है, व्हेन द मैनेजर इज अनकोऑपरेटिव एंड अनअसर्टिव, ना ही वो कोऑपरेट कर रहा है, ना ही उसकी कोई इंटेंशन है इस मसले को हल करने की। असर्टिव भी नहीं है, अनअसर्टिव है और अनकोऑपरेटिव है। अच्छा, दूसरी तरफ है अकोमोडेटिंग। अकोमोडेटिंग क्या है कि असर्टिवनेस कोई नहीं है, अनअसर्टिवनेस है, यू डोंट वांट टू गेट एनीथिंग आउट ऑफ इट, बट आप क्या कर रहे हो, आप कोऑपरेटिव बहुत हो। यानी मैनेजर जो है वो कोऑपरेटिव है, इज ट्राइंग टू सॉल्व दिस, बट यू आर ट्राइंग टू पुट अदर्स नीड इंपॉर्टेंट। असर्टिवनेस और अनअसर्टिवनेस को आप इस तरह भी देख सकते हैं। असर्टिवनेस क्या है कि आप समझते हो कि इस डिसीजन का मेरे लिए क्या मेरा बेनिफिट होना चाहिए। सो यू आर असर्टिव, यू हैव अ पॉजिटिव एनर्जी, आप चाहते हो कि इस मसले को हल करो, बट हल आप कैसे करना चाह रहे हो कि आप चाहते हो कि इसमें मेरा फायदा हो। अनअसर्टिवनेस यहाँ पे हम इस तरह भी ले लें, ज़्यादा आसानी हो जाएगी कि अनअसर्टिवनेस क्या है कि आपका उसमें पर्सनल इंटरेस्ट कोई नहीं है, ठीक है। सो अब यहाँ पे अकोमोडेटिंग है, अकोमोडेटिंग में अनअसर्टिवनेस है, यानी आप उसमें अपना कोई बेनिफिट नहीं देख रहे, बट यू आर कोऑपरेटिव, आप कोऑपरेटिव वो इस मसले को हल कर रहे हो, आप कोऑपरेशन दिखा रहे हो। नाउ व्हाट आइडिया इज कि यू आर ट्राइंग टू पुट अदर्स इंपॉर्टेंट देन योरसेल्फ, आप कह रहे हो कि बाकियों का भला हो जाए, मेरी खैर है। सो दिस सेज दैट रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स बाय प्लेसिंग अदर नीड्स एंड कंसर्न्स अबव योर ओन। सो अकोमोडेटिंग क्या है कि यू आर कोऑपरेटिव, आप मसले को हल कर रहे हो, बट यू आर अनअसर्टिव। अनअसर्टिव का मतलब है आप दूसरों को इंपॉर्टेंस दे रहे हो, और अगर असर्टिव होगे तो आप अपने को इंपॉर्टेंट दे रहे हो, आप अपनी नीड्स को इंपॉर्टेंट समझ रहे हो। दो चीज़ों को मैं दोबारा क्लैरिफाई कर दूं। असर्टिव क्या है कि जिसमें आपकी नीड इंपॉर्टेंट है दूसरों के मुकाबले में। अनअसर्टिवनेस क्या है कि जिसमें दूसरों की नीड को आप इंपॉर्टेंस दे रहे हो, अपनी नीड को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। अच्छा, अब हम देखते हैं कि व्हाट इज फोर्सिंग। फोर्सिंग एक और एक्सट्रीम आ गया। फोर्सिंग में इट इज हाई इन असर्टिवनेस बट लो इन कोऑपरेटिवनेस, यानी अनकोऑपरेटिव हो आप, बीइंग अ मैनेजर, द मैनेजर इज अनकोऑपरेटिव बट असर्टिव एंड इज फोर्सिंग द डिसीजन ऑन द अदर्स कि भी मेरी नीड इंपॉर्टेंट है, असर्टिव हाई है। तो आप कह रहे हो असर्टिवनेस इज हाई, सो माई नीड इज इंपॉर्टेंट देन द अदर्स, बट आप कोऑपरेट नहीं कर रहे, दूसरों की नहीं सुन रहे, तो आप कह रहे हो कि दैट इज कॉल्ड फोर्सिंग, यानी मैं अपना डिसीजन दूसरों पे मुसल्लत कर दूं, फोर्स कर दूं। सो रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स बाय सेटिस्फाइंग वंस ओन नीड्स एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स, आप कह रहे हो कि जी मेरी नीड सेटिस्फाई हो जाए, बाय बिकॉज दिस कंपोनेंट इज हाई इन असर्टिवनेस, और आप लो क्या है, कोऑपरेशन लो है, यानी अनकोऑपरेटिव मैनेजर है, यानी वो दूसरों की इंपॉर्टेंट नीड को इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहा। And then I'm going to discuss first the middle ground. Middle ground क्या है, बीच में एक पॉइंट आ रहा है जिसको हम कह रहे हैं compromising, यानी to some extent the manager is cooperative and to some extent he or she is a kind of assertive, यानी विन विन सिचुएशन है, हर पार्टी को कुछ ना कुछ मिल रहा है,
मैनेजर जो है वो अपनी नीड को भी इंपॉर्टेंट समझ रहा है, दूसरों की नीड को भी इंपॉर्टेंट समझ रहा है। वाई? बिकॉज ये असर्टिव के बीच में, असर्टिवनेस के सेंटर में आ रहा है। इसी तरीके से कॉपरेशन के भी ये सेंटर में आ रहा है। किसी हद तक वो कॉपरेट कर रहा है, किसी हद तक नहीं कर रहा है। सो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, कुछ ले दे के काम चल रहा है। कुछ हमने ऑफर किया एज अ मैनेजर, कुछ उन्होंने ऑफर किया और कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व हो गया। सो रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स बाय ईच पार्टी गिविंग अप समथिंग ऑफ वैल्यू, कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज किया, कुछ ना कुछ वैल्यूएबल चीज एक दूसरे के साथ ऑफर कर दी। मीनिंग कुछ हमने ग्राउंड अपना पीछे हटे, कुछ वो हटे, एंड देन वी सॉल्व्ड इट। नाउ द बेस्ट option being over here is high in assertiveness being shown, but high in assertiveness and high in cooperativeness, and that is called collaboration. Collaboration क्या है? Resolving conflicts by seeking an advantageous solution for all parties. यानी हाई इन असर्टिवनेस का मतलब है कि हम अपनी नीड को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। हाई इन कोऑपरेटिवनेस कि हम दूसरों की नीड्स को भी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। सो दैट इज कॉल्ड कोलैबोरेशन। कोलैबोरेट किया, मिलजुल के, एक दूसरे के साथ मिलजुल के इस मसले का हल निकाला। सो इट्स अ विन विन सिचुएशन, जिसको हम कहते हैं कि कुछ हमें भी ये सोल्यूशन बहुत अच्छा लगा है, दूसरों को भी बहुत अच्छा लगा है, दोनों का इसमें फायदा हो गया। दैट इज कोलैबोरेटिंग। बट कोलैबोरेटिंग के लिए नीड टू बी हाई इन असर्टिवनेस एंड इट शुड बी हाई इन कोऑपरेटिवनेस। मैनेजर को अपनी नीड को भी सामने रखना है और दूसरों की नीड को भी सामने रखना है, और फिर किसी ऐसे डिसीजन पे पहुंचना है जो कि दोनों पार्टीज के फेवर में हो। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस टीम मैनेजमेंट, और देखते हैं कि टीम्स मैनेजमेंट में क्या चीजें इंपॉर्टेंट है और क्या चीजें आ जाती हैं। तो फर्स्ट थिंग वी डिस्कस्ड ओवर हियर इज कॉल्ड ग्रुप टास्क एंड ग्रुप इफेक्टिवनेस। It says highly complex and interdependent tasks require effective communication, discussions among group members, and controlled conflict, more interaction among group members. So this slide says that whenever there is a complex problem or task to be completed, और ऐसे टास्क है जिसमें एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंट बहुत हैं, इट्स अ टीम वर्क, वेरी इफेक्टिव वर्क गोइंग ऑन। यानी मैं जो काम मुकम्मल कर रहा हूँ वो अगला उस काम में और एडअप करेगा, फिर और। सो हम वी आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, हम एक दूसरे से इनपुट्स भी ले रहे हैं और एक दूसरे को आउटपुट्स भी दे रहे हैं। सो बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ एनवायरनमेंट जो कॉम्प्लेक्स है, स्टेज बाय स्टेज हम एक दूसरे को हेल्प आउट कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट है। सो जब भी कॉम्प्लेक्स टास्क होंगी, कॉम्प्लेक्स काम होंगे, कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट होगी, सो दैट कैन बी the group work could be effective अगर हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे, there is effective communication going on। और कंट्रोल्ड कॉन्फ्लिक्ट है। कंट्रोल्ड कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ये है कि इंटरेक्शंस से उस मसले का हल ढूंढा जा रहा है। एक दूसरे को प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई होते हैं, हम डिस्कस करते हैं, ये प्रॉब्लम आया है, इसको कैसे हल किया जाए, हर एक की ओपिनियन लेते हैं, डिले नहीं डालते, हम उस प्रॉब्लम को अवॉइड नहीं करते, हम उन कॉन्फ्लिक्ट्स को सरफेस आउट होते ही फौरन उस पर डिस्कशन करते हैं, ताकि इस चीज़ को। और फिर क्योंकि कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट है, प्रेशर है, टास्क बहुत ज़्यादा टाइम पे कंप्लीट करनी है, सो जितनी जल्दी हम उस कॉन्फ्लिक्ट को आइडेंटिफाई करके उसको सॉल्व करेंगे, उतनी जल्दी वो चीज़ें बेहतर होती जाएंगी और प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व होते जाएंगे। टीम्स को यूज करने के क्या एडवांटेजेस हैं, टीम्स क्यों बिल्ड की जाती हैं, ग्रुप्स क्यों बनाए जाते हैं, टीम्स क्यों बनाई जाती हैं, इसके क्या एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट वन इज टीम आउट परफॉर्म्स इंडिविजुअल्स, यानी ऑब्वियसली टू आर बेटर देन वन। मतलब कि दो लोग अगर मिलके काम करेंगे तो वो एक से बेहतर होगा। वी हैव बीन डिस्कस्ड इट वेरी many times in this previous lecture that whenever you think about as a group, so groups can reach to a better decision, they can always give you a better solution. Why? Because there are different opinions which they are discussing, so they'll be reaching to a better decision. Teams provide a way to better use employee talents. जब when you develop a team में आपके पास डिफरेंट लोग होते हैं, हर एक का डिफरेंट नॉलेज होता है। रिमेंबर हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी, स्किल्स हर एक के डिफरेंट होते हैं, हर एक का टैलेंट फ़र्क होता है। और फिर जब आप टीम में होते हैं तो यानी यू कैन मेक अ बेटर यूज़ ऑफ द टैलेंट्स। आप कहते हो
अच्छा आपका एक्सपर्टीज कंप्यूटर्स में है, हम आपसे ये हेल्प ले रहे हैं इसमें, आपका काम जो है आप ज़्यादा अच्छे हो कम्युनिकेशन में, आप लोगों से डील करोगे, आप अच्छा काम हो, आपके स्किल्स अच्छे हैं रिकॉर्ड मेंटेन करने में, आप बुक कीपिंग करो. So when you talk about as a group, then there is a chance that when we talk about different talents, there will be different talents, and then a group or a team can make a better use of it. Teams are more flexible and responsive. Teams जब आप बनाते हैं, आप जो टीम एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को ब्रिंग टुगेदर एंड फॉर्म अ टीम. सो टीम में हमेशा टीम जब आप कहते हो इट्स मीन दे आर वर्किंग टुगेदर, दे हैव अ कॉमन डायरेक्शन, दे हैव अ मोटिवेशन, प्लस दे आर सपोर्टिंग ईच अदर. इंडिविजुअलिटी खत्म हो जाती है, अलग-अलग काम करने की आदत खत्म हो जाती है. आप काम तो कर रहे हो बट यू आर वर्किंग एज अ टीम, एज अ ग्रुप, द कॉमन ऑब्जेक्टिव है आपका. And the teams can be quickly be assembled, deployed, refocused and disbanded. टीम को ज़रूरत पड़ने पे आप बना सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, वो काम करवा सकते हैं जो आप करवाना चाह रहे हैं, काम करने के बाद वो डिसबैंड हो सकती है, ख़त्म भी की जा सकती है. सो टीम बनती हैं, काम करती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, बट द आइडिया इज दैट दे आर when they are more talent on the team, they will be more responsive, they will be more flexible, and they will be a better performing unit. Now we are going to discuss a little bit of different idea or concept. It's called a work team. So what is a work team? Work team is a group whose members more intensely work together on a specific common goal using their positive synergy, individual and mutual accountability, and complementary skills. What is a work team? Work team is a team which is going to work more intensively. They outperform other kind of teams because they are working as a group. They have more positive energy. Synergy is there. Synergy means that rather getting 2 plus 2 equal to 4, they are making it 2 plus 2 is equal to 5. And that additional component is coming through that synergy, that extra thing, motivation. So they are high in energy. So a group whose members work intensively on a specific goal using their positive energies, and they are individuals and mutually accountable. They are accountable, they do their work very well, they are always ready to show themselves कि जी हमने ये काम किया है, this is what we have done, and they have some extra skills also other than the skills which are required for this project or task. कुछ complementary skills भी हैं, यानी he is good in computer, he is good in communicating on websites, blog पे काम करना इसको आता है, मैसेज अपलोड्स करने आते हैं, इसको पब्लिक रिलेशनिंग का पता है, इसको एडवर्टाइजमेंट का कुछ पता है, इसको he knows how to develop reports, इसको reports लिखनी आती हैं, printing करना आता है. So they are different complementary skills, additional skills. But then the most important thing that a work team has something as a positive energy. उसके अंदर एक charge है, एक potential है उस काम को मुकम्मल करने का. That's called a work team. अब types of teams हमारे पास है. We have a problem solving team which is there to solve a certain specific problem. यानी ऐसी टीम जिसको फॉर्म किया जाता है कि उन्होंने किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और सॉल्यूशन जब मिल जाएगा तो वो टीम डिसबैंड हो जाएगी. सेल्फ मैनेज वर्क टीम्स, हमने पहले भी इस पे बात की थी. ऐसी वर्क टीम्स के जो खुद से मैनेज कर रही होती हैं, उनको कोई एडिशनल टास्क उनके पास होता है जिसमें उनको सिर्फ एक टास्क वर्क बताया जाता है, कैसे करना है, कैसे कंप्लीट करना है, वो खुद ये पैटर्न या प्रोसीजर डिफाइन करते हैं. क्रॉस फंक्शनल टीम्स में हमने बात की थी, अ काइंड ऑफ टीम्स which are built together by persons which are coming from different functional units, different departments के लोगों को मिला के एक टीम बना दिया जाए. that is called a cross functional team. virtual teams हमने डिस्कस किया था, which are online, they are communicating with each other through internet, maybe intranet, और एक दूसरे के साथ ऑनलाइन कम्युनिकेट कर रहे हैं. कोई कहाँ बैठा हुआ है, कोई कहाँ बैठा हुआ है, बट दे आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, दे आर वर्किंग ऑन एन असाइनमेंट, और फिर अपनी इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं. Now let's have a look at what are the work teams and what are the work groups. Leadership role is shared in a work team. Work team में और work group में क्या फ़र्क है?
वर्क टीम में लीडरशिप रोल जो होता है वो शेयर्ड होता है, यानी एवरीवन इज अ लीडर, बट वर्क ग्रुप के अंदर लीडर नॉमिनेटेड होता है, डिफाइंड होता है। अकाउंटेबिलिटी इज देयर फॉर टू सेल्फ एंड टू द ग्रुप और अदर टीम मेंबर्स वर्क टीम में, जबकि वर्क ग्रुप में अकाउंटेबिलिटी इज ओनली टू सेल्फ, हर एक सिर्फ अपने जवाबदेह होता है, टीम के लिए जवाबदेह नहीं होता और या टीम को जवाबदेह नहीं होता। इन वर्क टीम्स टीम क्रिएट स्पेसिफिक पर्पस, टीम जो होता है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए डेवलप किया जाता है, वेयर एज इन द वर्क ग्रुप्स पर्पस इज सेम एज ब्रॉडर ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस। ज़्यादातर ये देखा गया है कि वर्क ग्रुप्स में वही काम ग्रुप का होता है जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का होता है, उसका पर्पस होता है, जबकि वर्क टीम्स के अंदर इंडिविजुअल पर्पसेस भी हो सकते हैं, किसी ख़ास मकसद के लिए भी उस टीम को डेवलप किया जा सकता है। इन अ वर्क टीम वर्क इज डन कोलेक्टिवली, वर्क मिलजुल के किया जाता है, जबकि वर्क ग्रुप के अंदर हर ग्रुप मेंबर का एक इंडिविजुअल काम होता है जो वो परफॉर्म कर रहा होता है, जबकि टीम के अंदर सब मिलजुल के काम कर रहे होते हैं। इन वर्क टीम मीटिंग्स कैरेक्टराइज्ड बाय ओपन एंडेड डिस्कशन एंड कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। वर्क टीम में क्या है, डिस्कशन है, एक दूसरे के साथ बातचीत हो रही है ओपन फोरम पे, जबकि इन वर्क ग्रुप मीटिंग्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय एफिशिएंसी, नो कोलैबोरेशन और ओपन एंडेड डिस्कशन। ज़्यादातर जो है जो टीम लीडर है वो चेयर करता है, वो इश्यूज को जिस पे वो बात करना चाहता है करेगा, जिन पे नहीं करना चाहता उस पे कोई डिस्कशन है सच नहीं होगी। वर्क टीम में परफॉर्मेंस इज मेजर्ड डायरेक्टली बाय इवैल्यूएटिंग कलेक्टेड वर्क आउटपुट। इन अ वर्क ग्रुप परफॉर्मेंस इज मेजर्ड इनडायरेक्टली अकॉर्डिंग टू इन्फ्लुएंस ऑन अदर्स। वर्क टीम के अंदर परफॉर्मेंस ओवरऑल देखी जाती है कि ओवरऑल टीम ने क्या आउटपुट दी है, जबकि वर्क ग्रुप में हम इनडायरेक्टली भी देखते हैं और इंडिविजुअली लेवल पे भी देखते हैं कि हर एक ने इंडिविजुअली क्या काम किया है। वर्क इज डिसाइडेड अपॉन एंड डन टुगेदर। वर्क टीम में पहले काम को डिस्कस किया जाता है, उसको डिसाइड किया जाता है और उसको मिलजुल के मुकम्मल किया जाता है। Whereas in a work group, work is decided upon by the group leader and delegated by him to individual level. वर्क ग्रुप के अंदर टीम लीडर काम डिसाइड करेगा, वर्क टीम के अंदर काम मिलजुल के डिस्कस किया जाता है, डिसाइड किया जाता है और मिलजुल के किया जाता है। वर्क ग्रुप में टीम लीडर काम डिसाइड करेगा, हर एक उसका काम बताएगा और फिर हर बंदा अपना अपना काम मुकम्मल करेगा। ना वर्क ग्रुप्स में और टीम्स में हम देख रहे हैं कि वर्क ग्रुप में देयर इज अ स्ट्रॉन्ग क्लियर फोकस लीडरशिप, इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी, द ग्रुप पर्पस इज देयर। सो इट्स ऑलमोस्ट द सेम थिंग जो अभी आपने पिछली स्लाइड पे देखी, ये ऑलमोस्ट वही चीज़ें हैं कि वर्क ग्रुप में और टीम्स में क्या डिफरेंस आ जाता है, एंड एवरीवन इज देयर। सो इसमें ऑलमोस्ट वही चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की जा रही हैं। Let's have a brief look on the types of teams. जैसे मैंने कहा प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम्स कौन सी हैं, where employees from the same department and functional area who are involved in a group and they are putting their efforts to solve a certain specific problem. कोई प्रॉब्लम है उस पे डिपार्टमेंट के ही लोग, एक ही डिपार्टमेंट के लोग जो हैं वो एक ग्रुप बना दिया गया है, एक टीम बना दिया गया है, उस प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं और उसके सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करते हैं। सेल्फ मैनेज टीम्स क्या है, एक फॉर्मल ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज है हु ऑपरेट विदाउट अ मैनेजर, उनका कोई लीडर ऐसा सच नहीं होता, कोई मैनेजर नहीं होता, उनके पास अपनी जो नॉर्मल वो जॉब परफॉर्म कर, जो टास्क उनकी हैं वो तो वो करते रहेंगे, उसके अलावा उनके पास कोई एडिशनल काम आ जाता है जिसके लिए वो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करते हैं, काम करते हैं मिलजुल के, और उसमें वो उनको बेसिक एक काम बता दिया। जैसे हमने एक लास्ट लेक्चर में कहा था कि हायरिंग एक काम हो सकता है जिसके लिए एक टीम बना दी गई है, कमेटी बना दी गई है, वो कमेटी इंटरव्यूज़ करती है, बेस्ट पर्सन को सिलेक्ट करती है, उसके बाद वो ग्रुप जो है वो ख़त्म हो जाता है जब हायरिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। सो इट्स अ सेल्फ मैनेज, जिसको ये काम तो बता दिया गया है कि आपने हायरिंग करनी है, बाकी प्रोसेस कैसे होने हैं वो खुद डिसाइड करते हैं, ऑब्वियसली अंडर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन। क्रॉस फंक्शनल, इट्स अ हाइब्रिड ग्रुपिंग ऑफ पर्सनल्स coming or individuals who are expert in various specialities and work together on various tasks. जैसे हमने कहा कि डिफरेंट फंक्शनल यूनिट से डिफरेंट इंडिविजुअल्स को हम पिक करते हैं, we bring together
वी ब्रिंग देम टुगेदर ऑन अ सर्टेन प्लेटफॉर्म और एज अ ग्रुप और एज अ टीम, और उस टीम के अंदर जो है दे आर नाउ वर्किंग एंड दे बिलोंग टू डिफरेंट डिपार्टमेंट, डिफरेंट फंक्शनल यूनिट्स, हर एक की कोई स्पेशलिटी है, कोई एक्सपर्टीज़ है, और उसकी वजह से वो इस टीम के ऊपर अपनी परफॉर्मेंस की वजह से या अपने स्किल्स की वजह से यहाँ पे है, और फिर वो मिलजुल के किसी प्रोजेक्ट पे या असाइनमेंट पे काम करते हैं। वर्चुअल टीम्स, द टीम्स दैट यूज कंप्यूटर टेक्नोलॉजी टू लिंक फिजिकली डिस्पर्स मेंबर्स इन ऑर्डर टू अचीव अ कॉमन गोल। हो सकता है जो टीम मेंबर्स हैं ऑब्वियसली वो मे नॉट बी इन द सेम बिल्डिंग, मे बी नॉट इन द फिजिकल लोकेलिटी, सो सेम एरिया में सेम बिल्डिंग में वो नहीं है, दे आर फिजिकली डिस्पर्स्ड, कोई हो सकता है शहर के एक कोने में हो, कोई दूसरे शहर में हो, कोई दूसरे मुल्क में हो, पर दे आर ऑल द टीम मेंबर्स। यार व्हाई दे आर टीम मेंबर्स? बिकॉज द वर्क इज डिसाइडेड एंड दे आर वर्किंग ऑन अ सिमिलर वर्क टुगेदर एज अ टीम, एज अ ग्रुप। So when they are working as a team, so they are now communicating with each other online through internet, maybe through networks. So networks या internet के through जो है internet के through they are communicating with each other, they are communicating online via their computers. Although they are physically dispersed, वो different जगहों पे located हैं geographically, but they are communicating. So we call this as a virtual team. What are the characteristics of an effective team? एक अच्छी effective team के क्या characteristics हो सकते हैं? It may have a clear goal. गोल क्लियर होना चाहिए कि हम किस लिए एक टीम में हैं, हमने क्या काम करना है। रेलिवेंट स्किल्स, कि जो काम उस टीम ने करना है उसके लिए जो जो स्किल्स रिक्वायर्ड हैं उससे मिलते जुलते लोग, ऐसे लोग हमारे पास टीम में होने चाहिए जिनके पास स्किल्स होने चाहिए जो हमें रिक्वायर्ड हैं। ट्रस्ट मस्ट बी देयर, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी है, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। यूनिफाइड कमिटमेंट, कमिटमेंट होनी चाहिए, एक कमिटमेंट होनी चाहिए, यूनिफाइड होना चाहिए। दे मस्ट बी ऑन द सेम पेज कि हमने ये काम मुकम्मल करना है। दे मस्ट बी कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर इन अ पॉजिटिव मैनर, गुड कम्युनिकेशन होना चाहिए। एक दे मस्ट हैव निगोशिएटिंग स्किल्स, यानी अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो एक दूसरे के साथ बैठ के मसले को हल करना भी उनको आना चाहिए। सो दे मस्ट बी एबल टू निगोशिएट। अप्रोप्रिएट लीडरशिप होनी चाहिए एवरीवन, बिकॉज इन अ टीम एवरीवन इज अ लीडर, whereas in a group one is a leader and the other one are the members. So टीम के अंदर everyone is a leader, और लीडर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, कुछ फीचर्स होते हैं, वो उनको शो करना आना चाहिए। दे मस्ट बी लीडिंग, जब प्रॉब्लम आए तो एवरीवन शुड बी एबल टू लीड फ्रॉम फ्रंट, हर एक जो है वो उस प्रॉब्लम को फेस करे, उसको हल करने की कोशिश करे। दे मस्ट बी इंटरनल सपोर्ट, इंटरनल फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनल विद इन द ग्रुप ऑल्सो, विद इन द टीम। सो एक दूसरे की सपोर्ट करने आना चाहिए, हर एक दूसरे की सपोर्ट करें। फिर बाहर से भी सपोर्ट होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ग्रुप, उस टीम के बाहर ऑर्गेनाइजेशन है, सो टीम के अंदर भी सपोर्ट एक दूसरे की होनी चाहिए और टीम को बाहर से भी सपोर्ट मिलनी चाहिए। सो दिस इज व्हाट वी हैव बीन डिस्कसिंग। देयर मस्ट बी अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गोल्स, have competent members with relevant skills and interpersonal skills. They must be able to exhibit high trust in each other, in each other integrity. They have a unified commitment in solving or achieving the goals. They have a good communication system, यही हमने अभी पिछली स्लाइड पे भी कहा। They must possess effective negotiating skills. They need to have appropriate leadership, have both internally and externally. They must have some support. So that is called, these are the features for a good team. Now lastly we're going to discuss few things about what are the current challenges in managing teams. Nowadays we are requiring our employees to be able to cooperate more with each other, communicate more with each other, interact with more with each other. So आजकल जो डिमांड है टीम्स वर्क की वो क्या है कि वर्कर्स शुड बी एबल टू कोऑपरेट विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकें, कोऑपरेट करना उनको आना चाहिए। दे मस्ट बी एबल टू शेयर द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन शेयरिंग की उनको एक हैबिट होनी चाहिए, पॉजिटिव वे में, कोई नेगेटिव चीज़ नहीं, पॉजिटिव वे में ये इंफॉर्मेशन शेयर करें, उसको हाइड ना करें कि इससे इसको फ़ायदा ना पहुंच जाए कहीं।
कन्फ्रंट डिफरेंसेस, अगर कोई डिफरेंस आए तो उसको फेस करना चाहिए, उसको ये नहीं करना चाहिए कि अवॉइड नहीं करना चाहिए, उसको फेस करना चाहिए कि ये चीज़ अगर है तो आगे बढ़ के उसको हैंडल करना चाहिए। सब्लिमेट पर्सनल इंटरेस्ट फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द टीम, अगर कोई अपना पर्सनल इंटरेस्ट नज़र आता है तो उसको थोड़ा डाउन करना चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल या टीम का गोल या ग्रुप का गोल जो है दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट। ग्रुप मेंबर रिसोर्सेज, यूनिक कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स में आजकल ग्लोबल टीम्स को मैनेज करने में क्या क्या इश्यूज हैं। कल्चरल डिफरेंसेस आर देयर, जब आप ग्लोबल टीम की बात करते हो, एक ऐसी टीम की जिसमें डिफरेंट कंट्रीज से, डिफरेंट जोग्राफिकल एरिया से लोग मेंबर्स आपने पिक किए हैं, तो फिर आपको क्या क्या इश्यूज या कंसर्न हो सकते हैं। उसमें यह है कि डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड से लोग आ रहे हैं, दैट मे बी एन इशू। कन्फॉर्मिटी का इशू आता है, ग्रुप थिंकिंग नहीं होती क्योंकि हर एक इंडिविजुअलिटी की तरफ चला जाता है, क्योंकि हर एक का डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट बैकग्राउंड से आया है, एक दूसरे कल्चर के साथ एडजस्ट होने में भी इश्यूज होते हैं, तो ग्रुप थिंकिंग डेवलप नहीं होती। यानी ग्रुप थिंकिंग रिमेंबर के जिसमें हमने ऐश की स्टडीज भी पढ़ा था कि अगर ग्रुप जो कह रहा होता है और अगर इंडिविजुअल्स भी जानते हुए भी कि ओवरऑल ओपिनियन नॉट इन माय फेवर, बट वो चूँकि ग्रुप ये कह रहा है तो फिर सब मिलजुल के ही उस मुतफ़िका फैसले की तरफ चल पड़ते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ग्रुप थिंकिंग। सो देखा यह गया है कि ग्लोबल टीम्स में कन्फॉर्मिटी के इश्यूज आ जाते हैं, स्टेटस नहीं मिलता, वेरियस वेरीज इन इम्पोर्टेंस अमंग्स कल्चर, कहीं आप समझते हो कि रिकग्निशन होनी चाहिए, वहाँ पे कल्चरल इश्यूज आ जाते हैं, रिकग्निशन नहीं मिल रही होती, स्पेशली फॉर एग्जांपल लेडीज़ हैं, फीमेल्स हैं, उनको किसी कल्चर में इतनी रिकग्निशन नहीं मिल रही, तो वही आपको ग्लोबल टीम के अंदर भी नज़र आता है। सोशल लोफिंग है, उस पर क्रिटिक है कि इट्स वेस्टर्न बायस, कि जी सोशल लोफिंग होती है, ग्लोबल टीम जब बनती हैं तो कुछ कंट्रीज़ के लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, कुछ जो है उनकी परफॉर्मेंस लोफिंग यानी गपशप की तरफ या उनकी परफॉर्मेंस लो हो जाती है जब दे वर्क इन टीम, सो इट्स सम एक्सटेंट इट्स अ वेस्टर्न बायस। कोहेसिवनेस मोर डिफ़िकल्ट टू अचीव, यानी जब आपके पास डिफरेंट बैकग्राउंड्स के, डिफरेंट एरियाज़ के, डिफरेंट कल्चर्स के लोग आते हैं, ग्लोबल टीम में आते हैं, तो फिर देखा यह क्या है कि कोहेसिवनेस नहीं डेवलप होती, एक दूसरे के साथ इंटीग्रेशन नहीं होती, क्योंकि कहीं ना कहीं डिफरेंसेस आ जाते हैं। ग्रुप प्रोसेसेस कैपिटलाइज ऑन डाइवर्स आइडियाज़, डिफरेंट बैकग्राउंड्स, डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट आइडियाज़ लेके आते हैं, अच्छी चीज़ तो है, बट कई दफ़ा ग्लोबल टीम्स में कंसेंसस की तरफ जाना थोड़ा सा एक इशू हो जाता है। मैनेजर्स रोल क्या है इसमें, इट्स अ कम्युनिकेटर सेंसिटिव टू द टाइप ऑफ ग्लोबल टीम टू यूज़। फाइनली इसमें मैनेजर का क्या रोल होता है, मैनेजर का रोल है फैसिलिटेटर का, कि वो मिलजुल के उन इश्यूज़ को, आइडियाज़ को, कॉन्फ्लिक्ट्स को, कल्चरल डिफरेंसेस को, वेरिएशंस को मैनेज करे, एक कॉमन डिस्कशन प्लेस के तौर पे उसको डेवलप करे ऑर्गेनाइजेशन को या अपनी टीम को, जहाँ पे जो भी आइडिया हो उसको डिस्कस किया जाए, लेकिन स्टिल इट्स अ लिटिल बिट डिफिकल्ट टू मैनेज अ ग्लोबल टीम। डियर स्टूडेंट्स, विद दिस वी नाउ कंक्लूड अवर लेक्चर नंबर 24, और आज के लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 11 को डिस्कस किया, हमने ग्रुप को डिस्कस किया कि व्हाट इज़ अ ग्रुप, और फिर हमने कॉन्फ्लिक्ट की बात की कि कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट और परफॉर्मेंस का क्या रिलेशनशिप है, टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, और फिर हमने ग्रुप मैनेजमेंट की बात की, टीम मैनेजमेंट की बात की कि टीम और ग्रुप में क्या डिफरेंसेस हैं और टीम मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, विद दिस we conclude today's lecture number 24. I hope you've been able to understand the contents quite easily. Till the next time, from me, it's Allah Hafiz.